सीधा मालक स्वामी जुग जुग आप भंडारे भरे त्रैलोकीदा मालक स्वामी जुग जुग आप भंडारे भरे तरसे करे ते आ जग अंदर लखा पापी पारे करे आप बनाए आपे वेखे जगदा सिरजन हारे है एक खलादा राजा एक सच्ची सरकार है ऐसे नु परिणाम ने मेरे ऐसे आदेश सदा अवतारे गुरु मरे ना जमसे युग युग इनको सदा त्रैलोकीदा मालक स्वामी जुग जुग आप भंडारे भरे। साथ संगत प्यार आगे सेवा लेंगे और इन्हों तो बाद दास बेनती करेगा महात्मा दीवान चंद जी के सेवा लेंगे। सतगुरु माता सदीक्षा सुंदर अदेव जी महाराज की जय। संतो महापुरुषों ब्रह्म ज्ञानी महात्मा बेकुंठा में बैठे हो महान हो धन हो पूजन योग देवते हो जो संकार को जान के लिए की भक्ति कर रहे हो शोले गा रहे हो जो गान कर रहे हो भक्ति का सारा संसार कर रहे हैं कर भी इसके लिए ऐसा बिन देखे कर रहे हैं और मानो दृढ़ता नहीं आती। बाबा जी ने जो बंदे दिन रात जबान तो तू ही कहते हैं हर औकड़ से दुख सुख अंदर यही सहारा लेंदे ने सतगुर की भक्ति करते निरंकार के शोले गाउंदे ने रब उन्होंने अवस्था ते रब के विच समाउंदे ने। शुक्र करे इस रब का शुक्र है शुक्र है शुक्र है खुशहाली है या तंगी है घड़ी सोहनी भीतरी जो आएगी सो क्या चिंता करा मैं इस बंदे की ये सिफत तो वादा है ये सिफत का मालक साई निरंकार जो मैंने दिखाया ये तो बेहद ही सिफत वाला है जिसका सिफत से ग्रंथ करे गए हैं सतगुर के चरनी जिसका बाबा जी ने समझ आ गई सतगुर के चरनी जिसका लगा हरदम ध्यान रहे कहे अवतार उस जन अंदर निरंकार भगवान रहे भगवान का वासा हो जाता जब हर टाइम तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। बाबा जी एवं सर ऐसी मुट्ठी देती भी लै जी पांच कुड़ियां देती छक ली तेरा कल्याण हो जाएगा नहीं कन्नी सुन के अखी देखो फिर इसके बाहर करो कहनी दे नाल करनी तुल जाए जीवन एक सार करो पक्कियां दे विच मिल के बैठो आप जी जो पक्के हैं जिहदे नाल जुड़े हुए हैं पक्कियां दे विच मिल के बैठो कच्चियां दे विच मिलो ना लोकी लख भलेखे पाउण गल समझ आ गई भी यही निरंकार फिर अपनी थां तो हिलो ना। मन के वचन गुरु दे जीवन सवार गए मन के वचन गुरु दे जीवन सवार गए तकिए न दूजे आवल तकिए न दूजे आवल खुद सुधार गए मन के वचन गुरु दे जीवन सवार गए मन के
भी ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਨੰਦੀ ਮਹਿਸੂਸਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੀ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੋ ਇੱਕ ਉਸਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜੋ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਮੁਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗਿਆਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਮਾਰਗ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਨਸਾਨੀ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕੇ ਇਨਸਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨੁਖ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਨਾ ਬਾਰੰਬਾਰ। ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਔਰ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜੋ 3 ਕੁਐਸਚਨ ਹਨ ਕਿ ਹੋ ਆਏ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਵੇਰ ਆਈ ਕਮ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਵੇਰ ਆਈ ਹੈਵ ਗੋਨ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਨਸਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਥਰੂ ਗੋਡ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਈਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਸੁਦੀਕਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੈ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਨਿਰਾਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਨ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੀ ਰਹੇ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਚ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਚ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਦਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਗਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਹੱਥ ਰੱਖ ਸਿਰਾਂ ਤੇ, ਦੁਲਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਲਾਰ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਚ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਜੀ। ਸਤਸੰਗ 2 ਘੜੀਆਂ ਕਰਨ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੋਦਕੀ ਕਰਮਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਪੂਰਨ ਰਹਿਬਰ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦਾਸੀ ਲਾਏਗੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਾਵ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਨਵਾਨ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ, ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਕਿਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖਾਣੇ ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾਓ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸਿਨਰੀਆਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਦਾਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਦਾਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਿਲ ਮੈਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਮੇਰੀਆਂ 7 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਰਾਏ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਣ ਕੇ ਧਨਵਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਰਾਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁੱਲੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ 9 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੀਮਤ 9 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਨੀ ਕੁ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ 5 ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ੌਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਧਨ ਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਨੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੇੜੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰਦਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। आओ मंगिए खुशियाँ ही खुशियाँ, आओ मंगिए खुशियाँ ही खुशियाँ, सारे संसार दे रही। आओ मंगिए सारी दुनिया है परिवार ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਪਾਕ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਧੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਹਣਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੀਏ, ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਯਸ਼ੋਗਾਨ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਾਤਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸੁਭ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ। ਅਰਦਾਸ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋ ਇਹ ਸਬਬ ਬਣਿਆ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾ ਦਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਾਤਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇ।
ਇਹ ਜੋ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਇਹ ਭਾਵ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜੀ। रब नाल रिश्ता बनाया रब ने, साडा रब नाल रिश्ता बनाया रब ने, आप फड़ जमा तो छुड़ाया रब ने, आप फड़ जमा तो छुड़ाया रब ने, रब नाल रिश्ता बनाया रब ने, साडा रब नाल रिश्ता बनाया रब ने। सहज सहज जदों सैलियां सी हिलियां हो, सहज सहज जदों सैलियां सी हिलियां, नजरां दे नाल नजरां सी मिलियां, फेर कुछ मुंह सी सुनाया रब ने, रब नाल रिश्ता बनाया रब ने, साडा रब नाल रिश्ता बनाया रब ने। सत्संग जी प्यार नाल कहना जी। हम सत्संगत इस संगत का जो विषय समागम का विषय जो है सत्संग रखा गया है, इसका कारण क्यों है संगत जी, इतने जो मौका दिया जा रहा है कि आज हो रब के दर्शन कर लो। संदेशा है इंसानों मुर्शद बंदे लिया बनावे मेरे जे हवाना नू। तो सत्संग जी रब नू जानन की गल कही जा रही है। निरंकारी मिशन कोई जात पात धर्म नहीं है। सत्संग जी एक मिशन है जो जागरूकता फैला रहा है, इंसानियत के विच अज्ञानता दूर कर रहा है सत्संगत, ताकि ब्रह्म के ज्ञान की रोशनी सत्संग जी जन जन तक पहुँच सके। ये ज्ञान का दीवा सत्संग जी पहुँचाने के लिए गुरु पीर पैगंबरां ने जुगां जुगां तो बड़े उपराले किए। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज 25,000 किलोमीटर सफर तय करते हुए ये होका देने लिए चले गए कि आजो रब के दर्शन कर लो, आजो भाई लोग रब को जान लो, परमात्मा जानिया जा सकता है, रब देखा जा सकता है। तो सत्संग जी जो गुरु नानक साहब जी ये होका देने लिए संसार के विच गए तो फिर क्या होया, लोगों ने भूतना बेताला गुराइया बेताला कह के सत्संग जी पत्थर रोड़े मारे गए। और अज की कहा जाता है सत्संगत कि धन गुरु नानक आजा दुनिया पई पुकार दी, पर जब गुरु नानक आया दुनिया बट्टे मार दी। सत्संग जो बट्टे क्यों मारे गए थे सत्संगत, उदों भूतना बेताला क्यों कहा जाता है। सत्संग के समय की गल होती है जो समय का पैगंबर सतगुरु संसार के विच ज्ञान की रोशनी विशाल लेके सत्संग जी चलता है, तो विरोध करने वाले भी वही होंगे हैं सत्संगत। अज किन्हां दा नाम है इतिहास के विच सत्संगत, चाहे कितने ही कर्मकांडी सत्संग जी, कितने ही सत्संग जी पापी सीगे, अजामल पापी कोटा राक्षस जनिका पापन सत्संग कितने पाप करने के बावजूद भी गुरु के शरण के विच आ गए सत्संगत। गुरु ने ब्रह्म का ज्ञान दे के सत्संग जी ब्रह्म ज्ञानी सत्संग जी स्थापित करते, लेकिन वो इंसान जेडे गुरु के ही सत्संग जी पत्थर मारते रहे, रोड़े मारते रहे, गुरु की गल नहीं सुनी, रब का ज्ञान नहीं सुना सत्संगत। अज उन्होंने इतिहास च नाम नहीं आता सत्संगत, उन्होंने नाम आता है जिन्होंने ब्रह्म को जानिया, वो ब्रह्म ज्ञानी कहलाए सत्संगत, जिन्होंने रब को जानिया। अज यही गल सत्संग जी गुरु पीर पैगंबर समझा रहे हैं। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज आज देशा विदेशों के विच सत्संग जी अपने घर भी नहीं बैठते। सतगुरु माता जी कोई भी सत्संग जी अज गल करिए, कोई भी गुरु अगर धरती के उपर प्रगट है तो सत्संग जी अपने घर बैठ के सत्संग जी सारे संगत करते हैं, कहते मेरे को आओ दर्शन करके जाओ। कोई नहीं जा रहा सत्संग जी जन जन तक, कोई नहीं जा रहा दुनिया तक सत्संगत। अज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज पूरे साल के विच दास ने कदे नहीं देखा भी आप जी के घरे बैठे होंगे सत्संगत। आप जी टूर का प्रोग्राम देख लेना हरेक महीने, कभी अमेरिका कनेडा आस्ट्रेलिया अपने इंडिया की गल करिए, इतने सत्संग जी सारे स्टेटा के सत्संग जी टूर सतगुरु माता जी सुदीक्षा जी महाराज लगा रहे हैं। इतने तक भी सत्संग जी दास ने वीडियो देखी कि जिथे बसा या गड्डियां का साधन नहीं है, सतगुरु माता जी सत्संग जी किश्ती के विच जाके समागम करके आ रहे हैं, किश्तियों के विच जाके कर रहे हैं। कौन कर रहा है सत्संगत? नहीं तो कहते हैं मेरे को आओ, जो नाम है मेरे को लेके जाओ, तो आपके घरे चले जाओ सत्संगत। गुरु अज डरता है सत्संग जी नहीं तो संसार के निकलने लई, लेकिन पूरे गुरु की निशानी होती है सत्संगत। ये दुनिया का विरोध चाहे जितना मर्जी करी जाए, लेकिन सच की मिसाल लेके विशाल लेके सत्संग जी संसार के विच आंदा है।
विज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास। ये मन च प्रकाश कर जाता सत्संग गुरु अर्जन देव जी महाराज इसलिए कह रहे हैं। लेकिन अज संसार दे विच सत्संग अनेकों प्रकार दी भगतियां हो रही हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब की गल करिए तो बाणियां दे विच 5 तरह की भगतियां संसार दे विच दसी गई और इन्हां दा खंडन भी दस्सिया गया सत्संग। अज लोग परमात्मा नूं पाउण दे लई अनेकों प्रकार के पहरावे बदल रहे हैं सत्संगत। कोई माल घटाउण च लग्या है, कोई माल घटाउण च लग्या है, कोई टिंड कढ़ाई बैठा है, कोई पोती रखी बैठा है, कोई जटा रखी बैठा सत्संगत। अगर पुछ के देखिए कारण की है तो एक ही गल सामने आती है, कहते रब सानू रब मिलण दी बड़ी सानू तां कि असीं भगती कर रहे हैं। लेकिन सत्संग जी देख लिए चाचे क्या वैलिड है वो भगती साडी कितने लिखिया होया है जियां भगतियां करना। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने लिखित करती भगत कबीर जी की 654 नंबर से सानू पढ़न नूं मिलदा है। कहते 5 तरह दी भगतियां संसार कर रहा है। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਭਗਤੀਆਂ सत्संग जी अगर साडे चों भी कोई कर रहा है सत्संग जी यही गल दा सी सत्संग जी देखना है क्योंकि दास भी ना एक भगती करता सीगा। तो पहली भगती कहा गया सत्संग कि मन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया। पहली भगती मना दे विच जंगलां दे विच जाके जेडे लोग जाके भगतियां करते सी कंद मूल चुन खाया। कंद कहते सत्संग जी पत्ते तोड़ तोड़ के खाना। कहते जी असीं व्रत रखिया होया असीं रोटी नहीं खानी हैगी असीं रब दा नाम ले रहे हैं। पहली भगती कहते कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी शब्दी मोनी नादी सत्संगत जेडे कंन पड़वा के ठूठा पड़ के मंगते फिरते हैं कहते बाबा आ गया सत्संगत। असीं उन्होंने संत समझ के उन्हों का सत्संग सत्कार करते हैं। लेकिन पूरा सतगुरु धरती से प्रगट होता है। कहते सतगुरु को सब जग देखदा चेता सगल संसार पर डिठिया मुक्त ना होवे जिचर शब्द ना करे विचार। सत्संग जी जदों तक सतगुरु के नाल विचारधारा नहीं होती सत्संगत जदों तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता सत्संग जी सानू ज्ञान नहीं होता। तो सत्संग जी मोदी सत्संग जी जिहड़े कंन पड़वा के ठूठा पड़ के मंगते फिरते हैं। नादी बेदी सत्संग जी तीसरी भक्ति बेदी ਜਿਹੜੇ लोग वेद ग्रंथों को पढ़ते हैं कहते जी मैंने इतने ग्रंथ पढ़ लए मैंने इतने ग्रंथों का पाठ याद हो गया मैं दिन रात सुबह शाम पाठ कर रहा। तो सत्संग जी मैं बेदी किया गया सत्संग। उस तो बाद सत्संग जी भगती आती है चौथी शब्दी। कुछ लोग कहते जी असीं शब्द ले लिया असीं गुरु कोल गए सानू शब्द दे लिया ते हुण असीं शब्द का जाप करी जावांगे फिर किसी दिन रब साडे अगे प्रगट होएगा तो फिर असीं इहो जिहा सोच रहे सत्संग जी रब नूं कहांगे कि चल मेरे बच्चों को स्कूल छड्ड गया या मेरे बच्चों को पानी पा दे या उन्होंने पट्ठे लिया वट के। तो सत्संग जी लोग ऐसी भक्ति सोचते कि रब इस तरह साडे अगे प्रगट हो गए तो साडे काम करेगी मैं तो सौदा ही गिनावांगे ते समान लेके आवां। तो सत्संग जी ऐसी भक्तियां सत्संग इंसान कर रहा है। लास्ट भक्ति है सत्संग की मौनी। कुछ लोग मौन व्रत रखी बैठे हैं सत्संग कहते जी असीं तां सिर्फ रब का नाम लेना किसी नाल नाम कहना ना किसी को सुनना। कहते जी मौन व्रत रख लिया सत्संग। सच्चे पातशाह ने कहते इन्नी सोहनी जीव दई आ गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते बोलता क्यों नहीं किसी नाल शब्द वार्तालाप करो मौनी व्रत किसने किया। तो सत्संग जी कहते बोलना नहीं है किसी नाल मौनी। ये 5 तरह की भक्तियां संसार कर रहा है। मन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी शब्दी मोनी। तो सत्संग जी इन्हां दा रिजल्ट एक ही होएगा जदों सत्संग जी सुनिया तो सत्संग जी रोंगटे खड़े हो गए हैरानी हो गई कि असीं वो भगती का नहीं कर रहे साडा भी इस भगती च नाम का नहीं आता। कहते नादी बेदी शब्दी मोनी जम के पटे लिखाया। कहते जिहड़े इहो जिहियां भगतियां करदे सत्संग जी दावे नाल अरदास कर रहा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज की बाणी सत्संग जी प्रमाण कर दिया ISO सर्टिफाइड। सत्संग जी कोई दावा नहीं कर सकता चैलेंज नहीं कर सकता कि झूठ लिखा होया। कहते जम के पटे लिखाया। कहते जिहड़े ऐसियां भगतियां करते हैं जमा ने उन्हों का नाम पटिया के ऊपर लिखा हुआ कहता जमा के पटे पहनगे। तो सत्संग जी हजे भी मौका है वक्त है पूरा पैगंबर धरती के ऊपर प्रगट है सत्संगत अभी सतगुरु ज्ञान देने लिए आया है। असीं सत्संग जी ब्रह्म का ज्ञान ले पाइए सतगुरु की सत्संग जी चरण के विच पाइए। गुरु नानक साहब जी ने कहा अज लोगों को भुलेखा पै गया कहते गुरु का शरीर झाना बंद हो गया। गुरु का कदों का बंद हो गया गुरु थोड़ी आएगा हुण गुरु का शरीर के विच आ ही नहीं सकता। सत्संग जी अज तक जितने गुरु पीर पैगंबर होए शरीर के विच ही होए सत्संगत सानू शरीर के विच ही समझा के गए। लिखिया सी करके पवित्र बाणी के विच कि आप नारायण कलाधार जग में परवरिओ। आप नारायण सत्संग जी निरंकार कला धार के शरीर धारण करके साडे विच प्रगट होंदा है ते सानू सत्संग जी ब्रह्म का ज्ञान दिंदा है। गुरु नानक साहब जी नूं जदों पुछिया मर्दाने ने कि सच्चे पातशाह तुसीं बजुर्ग हो गए बुढ़े हो गए
दुनिया तो चले जाओगे, थोड़े बाद गुरु आएगा या नहीं आएगा, इस धरती को कौन उतारेगा। साथ संगत शब्द उच्चारण करे 470 नंबर से पढ़ने को मिलता है, कहते नानक मेरे शरीर का एक रथवा। नानक कह रहा, कहता मेरा शरीर है, एक रथ है, एक रथवा है, एक आत्मा है, एक इसको चलाने वाला रथ है। नानक मेरे शरीर का एक रथ, एक रथवा। कहते जुग जुग फेर बटाइए ज्ञानी बुझे ता। कहते मैं जुगा जुगा तक फेर बदल के आंदा रहांगा, पर एक गल ज्ञानी संत महापुरुषां नूं होएगी, जिन्होंने ज्ञान होएगा उन्होंने मेरी पहचान होएगी, जिन्होंने ज्ञान नहीं होएगा वो फिर उसी तरह विरोध करते रहेंगे। सत्संग आओ अज सतगुरु माता जी प्रगट है, ब्रह्म का ज्ञान दे रहे सत्संग जी, असीं भी समझ लेके सत्संग जी सतगुरु महापुरुष जो होकर लेके आए हैं, सतगुरु का सत्संग जी का जो संदेश है ध्यान नाल सुन पाइए। यही अरदास कामना है जी, प्यार नाल कहना जी। प्यार से कहना प्यारियो। प्यारी साध संगत जी, प्यार नाल आखो जी। प्यारी साध संगत जी, बहुत ही सुंदर वातावरण है और गुरु रूप संत महापुरुष परम पूजनीय ओपी निरंकारी जी साढ़े सामने सतगुरु की पावन पवित्र श्रेष्ठ विराजमान ने और सतगुरु का पावन पवित्र संदेश लैके साढ़े विचकार आए ने। आओ प्यारी साध संगत जी, सतगुरु की कृपा द्वारा इस निरंकार का यशोगान किया जा रहा है। आओ प्यारी साध संगत जी, ये जो निरंकार है ये साडा जिवें कहते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार, इसनूं देखना, प्रभु परमात्मा नूं देखना साडा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि इस दे विचों ही साडी आत्मा विछड़ी हुई है और 84 लाख योनियां तो बाद ये मनुखा देही प्राप्त हुई है। पवित्र गुरबाणी का शब्द असीं सरवण करते हाँ कि कई जन्म है कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर मिरख जोयो। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਈ ਜਨਮ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ ਬਣਿਆ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਗੱਜ ਹਾਥੀ, ਮੀਨ ਮੱਛੀ, ਕੁਰੰਗਾ ਹਿਰਨ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਪੰਛੀ ਬਣਿਆ, ਸੱਪ ਬਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰੀਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼, ਹੈ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇ ਹੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਦੀਸ਼ ਜਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਈਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਵਰੀਆ, ਚਿਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇ ਸੰਜਰੀਆ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਕਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਇੱਧਰ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੌਣ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਤਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਆ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਆਏ ਹਨ, ਇਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ, ਜਿਵੇਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ। ਵਿਛੜ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਕਦੋਂ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾ ਦੇਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਗਏ। ਮੂਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਰਮਾਤਮਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਨ ਹਰ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ।
लेकिन गुरमती रंग माण बंदा सोचता भी दिखता तो है नहीं नेड़े है, लेकिन कहते गुरु करना पैना है। गुरु गुरु जो इशारा दिंदा कि निरंकार है इहो इको जिसका कोई आकार नहीं, जिसका उरला कंढा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। दास बहुता समा ना लैंदा होया जीवन का जाच के प्यारी साध संगत जी ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਨੂੰ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਏ ਉਹ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਆਓ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਨਾਨਕਾ ਜੀ। ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਘੁਮਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਅਵਲੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਘੁਮਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੋਣ ਭਲੇ ਕੋਣ ਮੰਦੇ, ਇੱਕ ਨੂਰ ਦੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ ਕੋਣ ਭਲੇ ਕੋਣ ਮੰਦੇ। ਲੋਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰੂ ਸਵਾਰਦੀਆਂ, ਲੋਕ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਕਰੂ ਸਵਾਰਦੀਆਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਾਂਦਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ। ਸਭੀ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜ ਬਹਾਰਾਂ। ਜੀਵਨ ਮੇਰੇ ਦਿਆ ਸ਼ਹਿਨशाह, जीवन मेरे दिया शहनशाह, मेरे हक रंगोहारा। अल्लाह मेरे मौला तेरे नाल मौज बहारा, तेरे नाल मौज बहारा। साडे ओ तेरी रहमत ने सुख बख्शे ने दुनिया दे सारे साहिबावे तेरी रहमत ने, ओ तेरी रहमत ने साडे कीते ने हमारे यारे साहिबावे तेरी रहमत ने। और शास्त्री जी संपूर्ण हृदय वाणी आप सभी शास्त्री सुनते हैं कि शुक्र किए जा तू इस रब का शुक्राना की भक्ति है। तो शास्त्र भक्ति नाम समर्पण का तो शुक्राना बनता है। शास्त्र क्या कहेंगे सभी? लख वार करा शुक्राना, लख वार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। लख वार करा शुक्राना, लख वार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। तेरू सजदा तेरू सजदा तेरू सजदा करे फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। लख वार करा शुक्राना, लख वार करा शुक्राना, फिर भी थोड़ा फिर भी थोड़ा। बचना ते तेरे दाता बंदा जो करो गया, बचना ते तेरे दाता बंदा जो करो गया। कखनी से बोले जीना लखदा हो गया, कखनी से बोले जीना लखदा हो गया। सतगुरु तेरा शुक्रिया, साहिब तेरा शुक्रिया, जीवन में तो खुशियाँ लाया, मालिक तेरा शुक्रिया। सतगुरु तेरा शुक्रिया,
तेरा शुक्रिया, जीवन में तू खुशियाँ लाया। मालिक तेरा शुक्रिया, शुक्राना शुक्राना, सतगुरु का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, सतगुरु का शुक्राना। ऐसे नहीं बीच में कोई ताली बजा रहे हैं, कोई गा रहे हैं, बाकी सुस्त बैठे हैं, ऐसे नहीं साथी, सभी मिलकर शुक्राना शुक्राना, सतगुरु का शुक्राना। पल पल करिए करते रहिए, पल पल करिए करते रहिए, जपते रहिए बहाना। शुक्राना शुक्राना, सतगुरु का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, सतगुरु का शुक्राना। धरती पे आकाश बितारे तके हमारा नजारा, धरती पे आकाश बिताले तकिया नवा नजारा। नजर मिली ते नजर हो गया दिल का तकते हजारा, नजर मिली ते नजर हो गया दिल का तकते हजारा। रिदिया रिदिया ऐसे तोला पावा दिया, रिदिया रिदिया ऐसे तोला पावा दिया। सिफ्त करा दिया जीवे दाता दिया, ओ सिफ्त करा दिया। और साथ साथ अरदास जो राजमाता जी शास्त्री हमें बता के गए हैं, मिलकर शास्त्रीगत की इस अरदास में सभी ने शामिल होना है, क्योंकि बरसों बरस से ये अरदास शास्त्रीगत हम सच्चे पातशाह में सुनते आ रहे हैं। मिलकर शास्त्रीगत सभी सुख सारे दुनिया में पापों मेरी चोरी निची, फिर भी मिलाई रखो संता की टोली निची। सुख सारे दुनिया में पापों साकी टोली निची, फिर भी मिलाई रखो संता की टोली निची। तो शास्त्रीगत अंत में शास्त्रीगत दास एक ही बात आपके चरणों में रखेगा, और उसके बाद शास्त्रीगत को भी समा भी अपने मुकाम पर पहुंच गया है। तो शास्त्रीगत वहीं से हमने मुख्यमंत्री से आशीर्वाद प्राप्त करना है। तेरे चरनाच मेरी अरदास सतगुरु, तेरे चरनाच मेरी अरदास सतगुरु। अरदास में सभी ने शामिल होना, मिलकर मीठी मीठी तालियां। तेरे चरनाच मेरी अरदास सतगुरु, तेरे चरनाच मेरी अरदास सतगुरु। सुपने चलिया तोरे मेरा विश्वास सतगुरु, तेरे चरनाच मेरी अरदास सतगुरु, तेरे चरनाच मेरी अरदास सतगुरु। चराइया चराइया कहीं जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लग जांदियां ने। सभी चराइया चराइया कहीं जिंदगी विच आउंदियां ने, हथ होवे तेरा सिर ते आके लग जांदियां ने। खास सतगुरु तेरे चरनाच मेरी अरदास सतगुरु, तेरे चरनाच
सतगुर मेरी अरदास सतगुर मेरी अरदास सतगुर बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र देव जी महाराज की प्यार से बोलिए बोल सतगुरु माता सुदीक्षा सुरेंद्र हरदेव जी महाराज की। संत जनों, वक्त की सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज का लाख लाख शुक्र है। आज हमारे बीच में हमारे जुड़े विचार महात्मा पूज्य योगी निरंकारी जी बहुत ही विद्वान महात्मा हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो हमें इस आत्मा का जो ज्ञान मिला ना, आत्मा किसकी अंश है? परमात्मा की। और परमात्मा कौन सा है उसका ये महात्मा ज्ञान देते हैं। आज ज्यादा समय नहीं लेगा, गुरु के वचन को मान लेना ही भक्ति है। और गुरु का वचन क्या है? ये निरंकार है। निरंकार है निको जिसका कोई आकार नहीं, जिसका उरला कंडा कोई नहीं, जिसका परला पार नहीं। और इसके कांस्टेंट इसके साथ कनेक्टिविटी बनाने के लिए सेवा सिमरन सत्संग तीनों भक्ति का श्रृंगार है। भक्ति होती पूर्ण जब देते का आधार है। और सबसे बड़ी बात जो है सिमरन की आती है। इसमें सेवा भी करते हैं, सत्संग भी करते हैं। एक मिनट का था, सिमरन किसका करना है? सिमरन हमने इस निरंकार का करना है जो ठहरा हुआ है। इससे कांस्टेंट इस आत्मा का नाता, मन का नाता, इसको देख के सिमरन करना है। बिन देखे दे भक्ति करना अंबर नु हथ पाना है, बिन देखे दे भक्ति करना एवं समा गवाना है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने हमारा बहुत ही बड़ा उद्धार किया है कि मानस जन्म आखिरी पौड़ी फिर गया थे वारी गई, कहे उतार 84 में तोल घुमाई सारी गई। अगर ये जन्म व्यर्थ चला गया ना, 84 में भटके गए। अगर इस आत्मा का निज घर परमात्मा जान लिया तो आगमन के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। मनुष्य जन्म का इतनी मनोरथ है और ये वक्त का सदगुरु बना सकता है। आज वक्त की सदगुरु जो है सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज है। और निरंतर जो भी महात्मा ने ज्ञान लिया है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो जरूर जान ले, क्योंकि जब तक इसकी जानकारी नहीं होगी ये मन नहीं टिकेगा। मन बेचे सदगुरु के पास किस सेवक के कार्य रात। छोटी सी रचना है, आशा प्रवान करना दी। परया दी परया बेड़ा खुशियां नाल, परया दी परया बेड़ा खुशियां नाल, परया दी परया बेड़ा खुशियां नाल। मैं दी औगण हारी उत्ते सतगुरु कर्म करया दी खुशियां नाल, परया जी परया बेड़ा खुशियां नाल, जी परया बेड़ा खुशियां नाल। कहंदे खाली खाली मैं आखाई जगदा वाली, कहंदे खाली खाली मैं आखाई जगदा वाली। कण कण ये हो बड़िया नी, परया बेड़ा खुशियां नाल, परया जी परया बेड़ा खुशियां नाल, परया जी परया बेड़ा खुशियां नाल। आशीर्वाद सासंगत परिवार को देना है को सासंगत दोस्तों भी रिश्तेदार सज्जन मित्रों बहन भरावां आंडिया गुआंढियां का सबका सासंगत कोटन कुटुंब परिवार जो सासंगत इस परिवार को ये आशीर्वाद को देना है और सासंगत के नाल नाल हर नाल जितना साडे जोड़े चार सारे मिल के सत्संग मंगला चाहिए। समर्थ परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका बस रहा तेरा रूप
प्रभु सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु सबका हो हे बंदे तो जाग जरा, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे, उसके संग तो लाग जरा जी। परम सत्कार योग साध संगत जी, प्यार से कहना साध संगत, आप जी काफी समय से महात्माओं के वचन सुन रहे हो। साध संगत सभी ने बड़े सुंदर ढंग से आपके सामने वो बातें रखी, वो संदेश दिया जिसके लिए इस संसार में हम सब आए हैं। साध संगत, हम क्या करने आए हैं ये भी बात हमें पता होना चाहिए। साध संगत, अभी महात्मा बता रहे थे हमारा मूल मकसद क्या है, असली मकसद क्या है। पहले ये देखें कि इस प्रभु परमात्मा ने अरबों खरबों जीव बनाए। कुछ पानी में रहने वाले हैं, कुछ साध संगत आसमान में रहने वाले हैं, धरती पे रहने वाले हैं, धरती के अंदर रहने वाले हैं। कुछ ऐसे 4 प्रकार की श्रेणियां बताई गई हैं जीवों की। कुछ साध संगत जमीन से उगते हैं, कुछ जेर से आते हैं, कुछ साध संगत पसीने से आते हैं, कुछ साध संगत अंडे से आते हैं। कई प्रकार के हैं। कहने का मतलब ये जो करोड़ों जीव हैं, इन सब में से सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर शरीर इंसान को परमात्मा ने दिया। और साथ संगत इस इंसान को कितनी तरक्की भी कराई है परमात्मा ने। हम अपने जीवन में देखें, 20 साल पहले का हम अपना इतिहास देखें, क्या थे हम। साथ संगत एक चिट्ठी, किसी को संदेश देना होता था, एक चिट्ठी डालते थे, वो डाकिया वहां तक पहुंचाता था, फिर वो इंसान, वो परिवार पढ़ता था उसको, फिर उसका जवाब भी किसी से लिखवा के भेजता था। आज कितनी तरक्की की है। साथ संगत हम मोबाइल उठाते हैं, उसी समय बात हो जाती है, उसी समय साथ संगत वीडियो कॉलिंग भी हो जाती है, इंसान का चेहरा भी देख लेते हैं। कितनी सुविधा, कितना आसान प्रभु ने हमारे लिए बनाया। गाय भैंस तो वैसे ही है, उनको तो साथ संगत वही घास खाना है, वही दूध देना है। करोड़ों सालों से बेचारे वैसे ही है। उनको ना मोबाइल मिला, ना कोई कार मिली, ना कोई मकान मिला संगमरमर का। हम तो कच्चे मकानों से पक्के मकानों में आ गए। हम तो साथ संगत कितने कितने, जहाँ बाजरे की रोटी खाते थे, एक प्याज ले लेते थे, उसको साथ संग फोड़ लेते थे। लेकिन अब धीरे धीरे पराठे जिस प्रकार के खाओ, ये कितनी तरक्की हुई है। और फिर बर्गर भी है, पिज्जा भी है, कितनी और चीजें दे दी हमें, है। सरकार ने कितना कुछ हमारे लिए बनाया। बेचारे पशु तो वैसे की वैसे हैं। ये क्यों? अब ये तो सवाल पूछना चाहिए ना मैं अपने आप से। परमात्मा ने हमें इतने साधन दिए। पहले हम बैलगाड़ी में, घोड़े गाड़ी में,
कहीं पहुंचते थे। अब तो साथ संगत आम आदमी के पास भी कार है, स्कूटर है, कुछ ना कुछ साधन है, जहाँ जाना चाहे मिनटों सेकंडों में हम पहुंच जाते हैं। ये इसलिए परमात्मा ने हमें इतनी सुविधा दी, हमारी कितनी कदर की परमात्मा ने। ये इंसान बनाया मैंने अपने रूप में बनाया है इसको। ये मेरे को जानने के लिए इस शरीर में आया है। सबसे पहला काम इंसान का क्या है? जो हमें बनाने वाला परमात्मा है, ईश्वर है, जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। सृष्टि में कितनी चीजें साथ संगत, पानी को ही ले लें, पानी का विस्तार भी हम हिसाब नहीं लगा सकते कितना है। अब इतिहास बताता है, साइंस बताती है कि इस पूरी धरती का 90% तो पानी है, और कहां तक है, कितना है, कोई हमें तो हिसाब ही नहीं लगता। किस किस रूप में है? पहाड़ों के पहाड़ बर्फ के बने पड़े हैं, पानी का रूप। बादल जो आते हैं आजकल, ये भी साथ संगत है, पानी से भरे होते हैं, दिखता नहीं है पर बरसता है। इस पानी का कितना ही विस्तार कर दिया। हर एक वनस्पति में, एक पेड़ को देख लो, आप सब्जी लाते हो, पालक लाते हो, उसको निचोड़ के देखो, क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। कहां कहां पानी का विस्तार है, इस प्रभु ने किया। अग्नि का देख लो, कितने रूप बना दिए। साथ संगत मिट्टी के देख लो, कितने रूप हैं। ये धरती के रूप में भी है, इसी के ऊपर हम धान उगा लो, साथ संगत मक्की उगा लो, बाजरा उगा लो, साथ संगत कद्दू उगा लो, तोरी उगा लो, करेला उगा लो, जो आम का पेड़ उगा लो। कितनी चीजें इस पे उगती हैं, साथ में कोई हिसाब ही नहीं। किसके लिए? हमारे लिए। परमात्मा ने हमारे लिए कितना सुंदर संसार, अद्भुत अद्भुत संसार बनाया। शास्त्र इसके संसार का ही हमें विस्तार नहीं पता लगता, तो परमात्मा जो इसके बनाने वाला है, ये कितना बड़ा होगा। इसने जो ब्रह्मांड बनाया, साइंसदान लगे हुए हैं ये पता लगाने के लिए ब्रह्मांड शुरू कहां से होता है कहां तक नहीं पता लगता, अभी तक नहीं लगा। लगे हुए हैं, जब नहीं पता लगता हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं, भाई ये परमात्मा का अंत नहीं पाया जा सकता, थक जाते हैं। कितने वेद कतेब अभी महात्मा बता रहे थे, इसका जिक्र लिखने का कोशिश किया। 108 उपनिषद लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, कितनी स्मृतियां लिख दी, कितना कुछ लिखा पड़ा है। श्री गुरु ग्रंथ साहब हम पढ़े, कितना सुंदर सुंदर माला 1 से लेके 7 संगत कितने रागों में लिखा हुआ है। पढ़ के देखें, कितना कुछ विस्तार है, एक एक बात बारीकी से बताई गई है। तो साथ संगत ये सब किसके लिए? इसीलिए हमारी सहायता की गई है। साथ संगत भगवत गीता, साथ संगत रामायण, इतने सारे ग्रंथ हमारी सहायता के लिए लिखे गए, इसलिए कि हम समझ पाए कि हमारा असली मकसद क्या है, किस काम के लिए संसार में प्रभु ने हमें इतना सुंदर बेस्ट ऑफ द बेस्ट अद्भुत शरीर दिया। इस शरीर की बात करके देख लो। साथ संगत, इस शरीर में एक दिल रखा हुआ है जो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है, और साथ संगत एक पूरे दिन में 3 करोड़, एक साल में 3 करोड़ 70 लाख बार धड़कता है। और पूरी उम्र में तो कितना धड़कता होगा, 1 मिनट 1 सेकंड भी बंद नहीं हो सकता। 1 सेकंड बंद हो जाए तो क्या अवस्था होगी हमारी, आप समझ सकते।
साथ संगत 3 बिलियन हमारे सेल हैं, बॉडी जिनसे बनी। जैसे ये मकान बना ना, इसमें ईंट लगी, ईंटें लगी हैं, यहाँ तो गिनती हो सकती है। हमारे शरीर की जो बनावट है ना, वो छोटे छोटे कण मिला के बना है, और ये बदले जा रहे हैं लगातार। पुराने हो जाते हैं, नए लग जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, नए बन जाते हैं। इतने अरबों साथ संगत हमारे जो आंख दी है, साथ साथ ऐसा कोई कैमरा ही नहीं बना अभी तक। 576 मेगापिक्सल का कैमरा है, इसके मुकाबले में अभी इंसान कैमरा नहीं बना पाया। ब्रेन, हमारे अंदर जो दिमाग काम करता है, किस तरह इसमें इंफॉर्मेशन चलती है। 1 मिनट में हम क्या सोचते हैं, दूसरे मिनट में क्या सोचते हैं, क्या क्या विचार आते हैं, क्या क्या ख्याल आते हैं। 400 किलोमीटर की स्पीड से ब्रेन काम करता है। कमाल की अद्भुत है। फिर इसका शुक्र क्यों ना करें? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो एक बार मेरे साथ सब मिलके बोलो, साथ संगत जी प्यार से कहना, इसी परमात्मा को धन्य कह रहे हैं। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे पिता, मालिक, तुम धन्य। धन्यकार यही तो है। निरंकार ईश्वर का नाम है। धन्य हो, धन्यकार। यहाँ कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं, ये धन्यकार तो शायद निरंकारियों की है, इसमें हमें क्यों बोलना? अरे निरंकार तो सबका साझा है। ये ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, सबका मालिक है, सबका पिता है। हम इसकी गोद में बैठे हैं, इसके बिना हम जिंदा ही नहीं है। ये सांस दे रहा है, ये हमारे अंग संग है, ओतप्रोत है, हमारे अंदर बाहर है। हमारा दिल भी इसकी कृपा से धड़कता है। हमारी जो स्किन काम कर रही है, ऊपर की जो चमड़ी है, वो भी इसकी कृपा से चल रही है। हमारी आंख इसकी कृपा से देख पा रही है, कितने रंग पहचान लेती है। हमारी जीभ 1000 टाइप के स्वाद पता लगा सकती है। कितनी टेस्ट बड्स इसमें डाली है, कमाल है। फिर इसको धन्यकार तो कहना बनता है ना। प्यार से कहिए। और देखो, जब से ये सत्संग शुरू हुआ, महात्मा ने कहां से शुरू किया? साथ संगत जी प्यार से कहना, यानी कि श्रद्धा, प्यार, समर्पण भाव से बोलो धन्यकार। यही तो कह रहे। तो हमें बोलना चाहिए, सबको बोलना चाहिए। कोई भी गला, कोई भी शरीर चुप नहीं रहना चाहिए जब इसका शुक्रिया करना हो। ये शुक्रिया ही तो है हमारे पास। हम तो इसका देना दे ही नहीं सकते साथ संगत, जितना इसने हमें दिया है। खाने के लिए कितने प्रकार के अनाज बना दिए हमारे लिए, कमाल। कितने प्रकार, गर्दन से क्या क्या चीज बना। कोई ऐसी मशीन नहीं आज तक बनी जिसमें एक चपाती इधर से डालो, एक पराठा डालो और वो एक खून बना दे, वो मांस बना दे, वो हड्डियां बना दे। ये निरंकार की अद्भुत मशीन है जो हमें दी है। आप रोटी खाते हो, किस प्रकार से ब्लड सेल बन जाते हैं, किस प्रकार से नसें बन जाती हैं, किस प्रकार से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पता नहीं क्या क्या कहां कहां जा रहा है, कैसे जा रहा है। 1 लाख केमिकल रिएक्शन हमारे शरीर में पर मिनट होते हैं। 1 लाख केमिकल रिएक्शन, कमाल है ना। हम तो लेबोरेटरी में 1 कर लेंगे, 2 कर लेंगे, 3 कर लेंगे, और यहाँ इतना रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन दबादब, इतना स्टाफ लगा हुआ है, इतना स्टाफ लगा हुआ है। आज जब जरूरत पड़ती है ना, यही स्टाफ हमें भूख लगवा देता है। कमाल की बात। हम कहते हैं यार कुछ खाना पीना चाहिए, ढूंढते हैं खाने पीने को।
जब पानी की कमी होती है, 1% पानी की कमी होते ही संदेश आ जाता है, प्यास लगी, पानी ढूंढो, कोई ना कोई पेय पदार्थ, पीने का पदार्थ ढूंढो, प्यास बुझाएं। कितना एकदम से काला पड़ता है शरीर, पानी ना मिले, कितना अद्भुत सिस्टम बना है। तो इसलिए साथ संगत यहाँ यही संदेश दिया जा रहा था कि हे बंदे, जाग जरा, सोने का वक्त नहीं है। हम परमात्मा की तरफ से सो जाते हैं, अरे इसको तो जान लेंगे, इसका क्या जल्दी क्या है, बूढ़े हो जाएंगे फिर जान लेंगे। साथ संगत हमें पता नहीं हम बूढ़े होंगे कि नहीं होंगे, हम कितने सांस हैं किसी के, हमें किसी को पता नहीं। ना हमारा पैदा होना हमारे हाथ में है, ना इस संसार से रुखसत होना हमारे हाथ में है, और यहाँ जीना भी कौन सा हमारे हाथ में है। ये जिलवा रहा है, ये क्या, ये जिंदा रख रहा है, शरीर ठीक ठाक है तो हम जी रहे हैं। वो भी देखो, शरीर भी है, लेकिन बेचारे अस्पताल में किसी को वेंटिलेटर लगा हुआ है, किसी को कुछ लगा हुआ है, किसी को कुछ है, किसी का ऑपरेशन हो रखा है, किसी का ये टांग ऊपर टांगी हुई है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। शरीर भी है लेकिन स्वस्थ नहीं। जब तक स्वस्थ है भाई, ये बात समझ लो कि स्वस्थ रहते, जीते जागते परमात्मा को जान लो। हम भक्ति करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, कोई प्रयास नहीं कर रहा, कोई मंदिर का सहारा ले रहा है, कोई मस्जिद का, कोई गुरुद्वारे का, कोई किसी और धार्मिक स्थान का, कोई यात्रा कर रहा है, कोई सुबह स्नान करता है, कोई पाठ करता है, कोई पूजा करता है, सबको तड़प तो लगी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं कि हम परमात्मा को जानना नहीं चाहते। पर उस विधि से अब तक मिला कितने लोगों को, सोचने की तो बात है ना। साथ संगत, हमारी 1 सेकंड के लिए हमारे मोबाइल से कॉल ना लगे, हम इससे देखना मेरी कॉल नहीं लग रही, ये देखना मेरा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, हम बड़े तड़पते, शांति से नहीं बैठ पाते। मेरा कोई भी काम ना हो इस संसार में, भागे भागे फिरते हैं। हमारा नलका बंद हो जाए, पानी ना आए, उसको फोन, इसको फोन, बिजली बंद हो जाए, उसको फोन, इतना कुछ प्रयास करते, लेकिन परमात्मा ना मिले इसके लिए कोई दौड़ नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई चेष्टा नहीं। कमाल की बात है, जिसके लिए, जिस काम के लिए ये जीवन लिया है, ये शरीर धारण किया, उसके लिए चिंता नहीं है। तो इसीलिए साथ संगत इच्छा पद में आगे क्या बोल रहे हैं जी, जन्म जन्म से बिछड़ा जिससे उसके संतो लाभ जरा, जिससे तो जन्म जन्म से बिछड़ा है। 84 लाख जन्म बताए गए हैं, और एक एक जन्म में पता नहीं कितने कितने प्राणी हैं, कितने में से ये हम सभी में घूम के आए। ये परमात्मा ने हमारी ड्यूटी लगाई थी, जब संसार बनाया ना, सृष्टि की रचना हुई, तो प्रभु परमात्मा ने जीव बनाया। हम जीव हैं, आत्माएं, और कुछ नहीं। शरीर तो हमें दिया गया है काम करने के लिए, ये तो हमारा वाहन है, ये तो हमारा कैरियर है, हमें लेके घूम रहा है, इससे काम लेना है हमने। काम ही तो ले रहे हो, सारे काम ले रहे हो। ये किसान महात्मा खेत में हल चलाते हैं, शरीर से तो काम लेते हैं। हम साथ संगत ये बहनें रसोई में काम करती हैं, इसी शरीर से तो करती हैं, लेकिन जो असली काम है वो नहीं कर पाते। तो इसी के लिए यहाँ जागृत किया जा रहा है कि जिस काम के लिए आया भाई, वो काम कर ले। वो काम जब भी तेरे को कान में आवाज पड़े ना कि ये काम हो सकता है और काम करवाने वाला मौजूद है, फिर देर मत कर। हम सोचते रहते हैं, अरे ये तो कहते हैं, गुरु की बात करते हैं, गुरु तो मैंने फलाना किया हुआ है, ये किया हुआ है, वो
किया, बस वहीं फंस जाते हैं। ठीक है, गुरु तो हम हिंदी पढ़ने के लिए भी करते हैं, इंग्लिश पढ़ने के लिए भी करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी करते हैं, वो अलग चीज है। किसी से हमने संसार के बारे में, आध्यात्मिकता के बारे में बात कर ली, उसने हमें समझा दिया, गीता में ऐसे लिखा है, वेद में ऐसे लिखा है, ये समझा दिया, पर उसने निरंकार तो नहीं बताया ना प्रभु, क्योंकि प्रभु तो सर्वव्यापी है। इसको जानने के लिए कोई वेद ग्रंथ नहीं पढ़ना पड़ता। हाँ, सहायता ली जा सकती है, सहायता लेने के लिए मना नहीं है, समझने के लिए सारे ये वेद ग्रंथ हमारी सहायता के लिए पढ़े थे। इनको पढ़ो, समझो, लेकिन असल ज्ञान जो है वो पहले लेना पड़ेगा। असल ज्ञान क्या है? परमात्मा यहाँ है जहाँ हम बैठे हैं, हम परमात्मा के कारणों से बैठे हैं यहाँ। हम जो बैठे हुए हैं ना, हम लगता है कि मैं बैठा हूँ, लगता है ना सबको कि मैं बैठा हूँ, तो ये भूल जाते हैं चारों तरफ मेरे परमात्मा ने मेरे को थामा हुआ है, मेरे अंदर भी है, मेरे चारों तरफ भी है, तभी हम बैठ पा रहे हैं, बैठे हुए हैं। अभी ये अपना अंश एक तरफ कर दे, बीच में से निकाल ले, अलग हो जाए ये जीव इसमें से, हम बैठ पाएंगे? बताओ, कोई हाथ खड़ा करो, किसी में हिम्मत है बैठे रहने की? तो इसी के कारण से तो यहाँ बैठे हैं और इसी के कारण से सुन रहे हैं। सुनने की शक्ति भी इसके हाथ में है। ये अपनी शक्ति निकाल ले, फिर सुन के बता दो, बोल के बता दो, देख के बता दो, सुन के बता दो, कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी कृपा से हम सब क्रियाएं कर रहे हैं, तो क्यों ना फिर इसको जाना जाए। और ये कहीं नहीं है, यही है, हर समय हमारे साथ। हम भूल जाते हैं, हम इससे अलग हो जाते हैं, हम कहते मैं अलग हूं, परमात्मा अलग है। नहीं, यही समय का सतगुरु। समय, ये सतगुरु समय समय पर शरीर बदल के आते हैं। सतगुरु होता क्या है? सतगुरु आप परमात्मा किसी न किसी शरीर का ओला लेकर समय के हिसाब से, आवश्यकता के हिसाब से एक शरीर में प्रकट होता है। सतगुरु और कुछ नहीं होता, शरीर का सहारा लेता है, क्योंकि हम शरीर की बात समझते हैं। शरीर की बात ही हमारी समझ में आती है। अगर ये परमात्मा बीच में से ऐसे ही बोलने लग जाए, हम तो भाग लेंगे, ये क्या बोल रहा है, भूत आ गया। ये बोल सकता है, लेकिन ये शरीर ऐसे निराकार रूप में बोलता नहीं है, क्योंकि बोलने के लिए शरीर रूपी यंत्र चाहिए। जैसे हमारे पास सुनने के लिए शरीर रूपी यंत्र है, बोलने के लिए भी यंत्र चाहिए, लेकिन ये तो निराकार है। परमात्मा का कोई आकार नहीं है, कोई शक्ल नहीं है, कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है। ये तो पहले से ही लिखा हुआ है, आज तो नहीं लिखा किसी ने। और सच्चाई भी यही है। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ के देखो, श्री कृष्ण ने बड़ा स्पष्ट बताया कि मैं कौन हूँ, क्या रूप है मेरा। मैं निराकार हूँ, स्पष्ट रूप में बताया। मेरा कोई आकार नहीं है, मैं सर्वव्यापी हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ, जरे जरे में समाया हूँ। हमने तो नहीं लिखी, पहले से लिखी। तो साथ संगत ये लेखा लग जाता है, पता नहीं ये निरंकारी ऐसा क्या है। कुछ नहीं है। निरंकारी उसको कहते हैं जो निरंकार की बात करता है। निरंकार परमात्मा को कहते हैं और परमात्मा से मिलाते हैं। ये नहीं कि सिर्फ बात करते हैं। दुनिया में परमात्मा की बात होती है, यहाँ परमात्मा से मिलाया जाता है, दिखाया जाता है, क्योंकि प्रत्यक्ष है। परमात्मा कैसे लाना नहीं, सर्वव्यापी है। हम परमात्मा के कारण से बैठे हैं, परमात्मा नहीं बैठे हैं। अभी जब यहाँ भोग पड़ेगा, हम खड़ा होना चाहेंगे। सभी खड़ा होना चाहोगे? हम खड़े होने का प्रयास करेंगे। खड़ा कौन करेगा? कोई खड़ा करेगा, कोई शक्ति खड़ा करेगी। ये जो अंश है, यही हमें खड़ा करता है। जो
जो हमारे चारों तरफ है, इसी की शक्ति हमें खड़ा करती है। फिर हम चलने का प्रयास करते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, अपने आप ही कदम बढ़ते चले जाते हैं। हमने कोई स्विच नहीं दबाया, कोई गियर नहीं लगाया, कोई हैंडल नहीं चलाया, चलना शुरू हो गए तो हो गए। चाहे दौड़ लो चाहे भाग लो, ये करवाता है सारा कुछ। कर ले भाई, मैंने तेरे लिए सारे इंतजाम रखे हुए हैं। यही तो आगे बता रहे हैं जी। रंग बिरंगी इस दुनिया में क्यों खुद को उलझाता तू, नाशवान माया में अपनी क्यों है जान फसाता। अब ये भी सच्चाई बता दी कि ये दुनिया रंग बिरंगी है, इसमें क्यों फंसाया हुआ है तूने। इसको सिर्फ यूज कर, इसको प्रयोग कर, तेरे लिए प्रयोग करने के लिए बनाई है, लेकिन इसमें उलझना नहीं। भाई ये दुनिया सब कुछ है, ये पैसे सब कुछ है, मकान सब कुछ है, दुकान सब कुछ है, परिवार सब कुछ है, बच्चे सब कुछ हैं। ये समझ ले भाई, ये सब कुछ नहीं है। जब तू शरीर छोड़ेगा तेरे को कोई नहीं पूछेगा, कहेगा इसको विदा करो, इसका हिसाब किताब करो, हो गया काम। बस इतना ही था नाता हमारे साथ, कोई रखने को तैयार नहीं। टाइम सब पूछने लग जाते हैं, कितने बजे ले जाओगे जी, कोई रखने को तैयार है? सभी पूछते हैं। वही था, उतना ही वजन है अभी भी, आंखें भी उतनी लगी हुई है, कान भी उतने लगे हुए हैं, टांगे भी लगी हुई है, लेकिन कोई रखने को तैयार नहीं। ये तो हमारी अवस्था है। यही बताया भाई, इस रंग बिरंगी दुनिया में उलझ मत, सिर्फ इस्तेमाल कर। जब तक जरूरत है इस्तेमाल करने के लिए मना नहीं किया, सारे काम कर, इस्तेमाल कर, लेकिन असली काम है वो कर ले। तन भी तेरा नहीं अपना, इसे छोड़कर जाना है। तन के संग जुड़े साथी में काम न तेरे आना है जी। आज ये भी सबको पता है ना, ये तन अपना है। और देखो इसके अंदर एक मन रूपी ताकत भी है। जो कुछ हम देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, समझते हैं, वो हमारे मन में स्टोर हो जाता है। और जो कुछ हमने मान लिया हाँ ये सही है, वो कहाँ मेरे मन में, मन रूपी सॉफ्टवेयर लिखता गया। वो सॉफ्टवेयर है एक शरीर का, जो हमें समय समय पर बताता है ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब यहाँ जाओ, अब ये करो, अब बैठ जाओ, अब सो जाओ, अब हंसने लग जाओ, रोने लग जाओ। यही तो करवाता है हमारे। ये 3 चीजें हमें दी हैं इस शरीर को चलाने के लिए। एक शरीर तो है ही है, 5 तत्वों का, धरती, अग्नि, पानी, वायु और आकाश। और एक इसके अंदर मन है सूक्ष्म रूप में, जिसको इनर कॉन्शियस कहते हैं, इनर बॉडी भी कहते हैं, कई तरह के नाम रखे हुए। एक हमारे साथ प्रभु परमात्मा ने सबको साधन दिए हैं, समान दिया है चीजों के रूप में। अच्छा ये कपड़े तेरे नाप के हैं भाई, ये तेरे हैं, ये साइकिल तेरी है, ये स्कूटी तेरी है, ये कार तेरी है, ये मकान तेरा है, ये नोट तेरे हैं, सबको दिए हैं बांट बांट के। सबका अपना अपना सामान है, माल है अपना अपना। बड़े हम चौड़े होके घूमते हैं, आज ही मेरे पास इतना है, मेरे पास इतना है जी। लेकिन यहाँ बताया ये भाई तेरा कुछ नहीं है, शरीर भी तेरा नहीं है, इससे जो कुछ जुड़ा है ना मन तेरा है ना धन तेरा है ही नहीं। लेके जाना, ले जाना साथ में, नहीं ले जा सकते। वही इतना बढ़िया शरीर, पार्लर में जा जाके इसको पता नहीं क्या क्या लगवाते हैं, इतने सुंदर सुंदर कटिंग कराते हैं, इतने सुंदर सुंदर फैशन वाले कपड़े पहनते हैं, जूते, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। और वही जब नहीं है तो ना वो जूते ढेरों पड़े हुए हैं, किसी काम के नहीं, किसी को नहीं आते, कहते फेंक दो यार, बंदा चला गया। अब ना ये कपड़े काम के, ना बिस्तरा काम का है, ना कुछ लेना देना, कुछ नहीं चाहिए, फेंक दो। आगे भी क्या बताया जी, आंखें जिनको देख रही हैं वो नजारे छूटेंगे, जिन पर तुझको नाज है इतना
सहारे छूटेंगे जी। जिन चीजों पे तेरे को नाज है, मेरी आंखें इतना देख सकती हैं, इतना समझ सकती हैं, ये भी छूट जाएंगे भाई, ये भी किसी काम नहीं आएंगी। ये सारे नजारे सब छुप जाएंगे। ये जितने देख रहे हो ना, पहाड़ पर्वत, ये वो हरियालियां, कुछ नहीं रहेगा जी। दुनिया एक सफर है बंदे, तेरा कहा ठिकाना है, कहे हर दे कहाँ से आया, कहाँ पे तुमने तुमको जाना है। ए भाई, ये तो सफर है, एक ये सराय है जिसमें तू आया है। एक साथ संगत कोई धनवान था, उसके घर कोई साधु महात्मा गए, उससे पूछते ये सराय किसकी है। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ, मैंने करोड़ों रुपये लगा के इतना मंजिला मकान बनाया, इसमें स्वीडन से ये मंगाया, फ्रांस से ये मंगाया, इस महात्मा ने कह दिया सराय किसकी है। कहते महाराज क्या कह रहे हो, सराय थोड़ी है, ये तो मेरा मकान है। कहते अच्छा इसमें पहले कौन रहता था। कहते मेरे बाप दादा। कहाँ हैं। चले गए। उससे पहले कौन रहता था, उनके बाप दादा। वो कहाँ है भैया, वो भी चले गए। फिर जहाँ कोई पक्का रहा ही नहीं, अब तू भी नहीं रहने वाला पक्का, तो सराय कहेंगे ना, सराय है, मकान तो नहीं कह सकता तू भाई, परमानेंट तो तू है नहीं यहाँ। ये शरीर भी परमानेंट हमारा नहीं है, ये भी सराय है हमारी, ये भी जब छोड़ के जाना है। ऐसे शरीर करोड़ों बने हैं, कोई भी नहीं रहा, हमारे सामने गए। जब महाभारत का युद्ध हुआ, 1 लाख शरीर रोज जाते थे, क्या कर लिया किसी ने। तो शास्त्र यही ये समझा रहे हैं कि भाई तू असल काम जो है ना, परमात्मा को जान ले, समझ ले, ये तेरा असली काम है, असली ठिकाना है, यहीं तूने पहुंचना है, यहीं से तू चला था। जब परमात्मा ने संसार की रचना की तो अपने में से एक जीव की रचना की और इसकी ड्यूटी लगाई। तो भाई मैंने ये बुत बनाए हैं शरीरों के रूप में, कोई पशु बनाए, कोई पक्षी बनाए, कोई इंसान बनाए, कोई ये बनाए, कोई ये बनाए, तो इनमें जा ड्यूटी कर, इनको जिंदा कर, जिंदा रख के अपना काम करते रहेंगे, तो इनको जिंदा रख, तेरा यही काम। रोने लग गया, अरे महाराज आप इतना मेरे को घुमा दोगे, मेरे को कृपा करो, वापस अपने में भी जोड़ लेना कभी। कहता मैंने मौका रखा हुआ है तेरे को, मैं खुद जब तेरे को एक ऐसा शरीर दूंगा मानुष चोले का, और मैं खुद मानुष चोले में आके प्रकट होऊंगा, फिर तेरा कल्याण। फिर तेरे को मैं अपनी जानकारी खुद दूंगा। और ये वायदा प्रभु ने हर समय निभाया है, हर युग में निभाया है। सतयुग में देख लो, त्रेता में देख लो, द्वापर में देख लो, अभी देख लो, कितने गुरु हो चुके हैं। हम उलझ जाते हैं कहीं ना कहीं, हम किसी शरीर के साथ जुड़ जाते हैं। शरीर सब जाने वाले होते हैं, हमें वो चाहिए। शास्त्र एक डॉक्टर है, बहुत लियाकत वाला है, बहुत समझदार है, हम उसको अपना लेते हैं, हमारा फैमिली डॉक्टर होता है, पर उसको शरीर छोड़ना था, छोड़ गया, हम फिर और ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते। अब हमने काम तो कराना है ना, हम दूसरा ढूंढते, हमारा काम चल जाता। ऐसे ही जहां से हमें असलियत ना मिले, दूसरा गुरु कर लो, पहुंच जाओ, क्योंकि परमात्मा तो यही है ना, कैसे लाना नहीं। तो पूछो भाई परमात्मा दिखा सकते हो, जो दिखा सकता, हाँ जी आओ ना, बैठो 1 मिनट में दिखा देता हूं, क्योंकि कैसे लाना नहीं। ये कोई वर्त नेम नहीं बताने, कोई क्रियाक्रम नहीं करवाने, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसके लिए कोई धंधा नहीं करने की। लो जी ये परमात्मा, ये अनसंग है, बस ज्ञान देना है, समझाना है, और यही आज कर रहे। तो शास्त्र ने आज देखा हमने किस प्रकार से महात्माओं ने इस सत्य का संदेश भी दिया, और साथ में बच्ची का बर्थडे भी था। आप सभी ने उनका भी गीत सुना और सभी महात्माओं के गीत सुने।
महात्माओं का तो यही प्रयास होता है कि बहाना कोई भी हो, मौका कोई भी हो, ये संतों के चरण पड़ जाएं, संतों के दर्शन हो जाएं, ये गुरु का संदेश हम पहुंचा सकें, यही प्रयास होता है। यही प्रयास है संत महात्माओं ने, पूरे परिवार ने मिलके किया है। दातार सच्चे पातशाह जितने भी महात्मा शामिल हुए हो, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सभी ने किस प्रकार से, मौसम भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि ये बारिश का जब मौसम होता है ना, कुछ उमस भी हो जाती है, इसमें हवा चले तब भी ज़्यादा आराम नहीं मिलता, ना चले तब तो मिलता ही नहीं है। तो आपने इस मौसम को भी टॉलरेट किया, इसके साथ भी आपने सहन किया, और आपने खूब गीत भी गाए, तालियां भी बजाई, सबने मिलजुल के निरंकार प्रभु की उस्तत की। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। किसी मंदिर में जाते हो, गुरुद्वारे में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, कहीं भी जाते हो, जाओ, कोई मना नहीं, किसी को यहाँ रोकता नहीं है कोई। किसी भी प्रकार के वस्त्र पहनते हो, दिखने में सरदार दिखते हो, हिंदू दिखते हो, मुसलमान दिखो, सिख दिखो, कोई हमें कोई तकलीफ नहीं। हमें तो आत्मा को परमात्मा से मिलाना है, वो सभी में एक सी है। उसका कोई मजहब नहीं है, उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, उसका कोई मकान भी नहीं है। वो तो जिसमें है उसमें जहां भी है वही है। तो शासन इस आत्मा को ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है, संभव है। परमात्मा जानने योग्य है। परमात्मा हमारा अपना पिता है, अपना निजी, किसी का नहीं है, हमारा अपना। इसको जानने के लिए हम पैदा हुए, इसको जाना जा सकता है। इसलिए जो जानना चाहने के इच्छुक हैं, अपनी ख्वाहिश बता दें, उनको परमात्मा दिखा दिया जाएगा। यही अरदास है। प्यार से कहिए। माता सुदीक्षा समन्वित अजय जी
वाली राज